بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا؟ الطاف حسین صاحب کی نظر میں بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے، اور اصل میں بلوچستان کے مسئلے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس حوالے سے الطاف حسین صاحب کی کیا رائے ہے، کیا سوچ ہے، یہ بتایا الطاف حسین صاحب جی، اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ آج کا نہیں ہے، 10 سال پہلے کا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ 1947 سے چلا آ رہا ہے، جب سے پاکستان کو وجود میں لایا گیا۔ بلکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ 21ویں صدی کے آغاز سے ہی چلا آ رہا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ جب دنیا میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی، یعنی جو فرسٹ ورلڈ وار ہے وہ ہوئی تھی 1914 سے 1918 تک، اور جو دوسری ورلڈ وار ہوئی تھی جنگ عظیم دوم، تو وہ ہوئی تھی 1939 سے 1945 تک۔ تو اس زمانے میں جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا جو ہو گیا، انڈیا پاکستان جو ہے آج کے، تو ہندوستان پہ برطانیہ قابض تھا۔ تو جنگ میں برطانیہ کو فوجی چاہیے تھے، مرنے کے لیے اور مروانے کے لیے اپنے فوجیوں کو، اپنے شہریوں کو بچانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے ہندوستان سے فوجی بھرتی کیے تھے اور ان کو بھیجا تھا جنگ لڑنے کے لیے۔ اور جو برطانیہ کی جو لڑائی ہو رہی تھی، ورلڈ وار 1 اور 2 دونوں میں برطانیہ شامل تھا، تو اس میں ان کی لڑائی ہو رہی تھی، دشمنی تھی جرمنی سے، جاپان سے اور ترکی سے، جو آج کل ترکیہ ہو گیا ہے۔ تو جب مانگے گئے فوجی ہر ریاست سے، ہر علاقے سے، تو پنجاب سے بھی فوجی بھرتے ہوئے، انڈیا کے باقی علاقوں سے بھی فوجی بھرتے ہوئے، لیکن جب بلوچستان سے لوگ مانگے گئے کہ آپ فوج میں بھرتی کریں، تو اس زمانے میں ہوتے تھے نواب خیر بخش مری صاحب۔ ایک نواب خیر بخش مری صاحب تو اس زمانے کے ہیں، جو ہمارے زمانے کے ہیں، جو کہ فوت ہو گئے۔ ایک ہوتے تھے جو ان کے دادا ہوتے تھے، تو وہ ہیں نواب خیر بخش مری اول صاحب۔ تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم فوجی نہیں دیں گے برطانیہ کو، کیونکہ اس جنگ میں ترکی بھی شامل تھا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو مسلمان سے لڑے، اور وہ اس لڑائی میں حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جو لڑائی تھی وہ ہندوستان کے لوگوں کی لڑائی نہیں تھی، اور جو بلوچستان جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا قیام پاکستان سے پہلے۔ تو اس زمانے میں یہ بات ہے 1916 کی، کہ جب نواب صاحب نے منع کر دیا، انکار کر دیا، جنرل ڈائر ہوتے تھے اس وقت، تو جنرل ڈائر جو ہیں وہ آگ بگولا ہو گیا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور اس نے بدلہ لینے کے لیے نا وہاں پہ ڈرٹی پالیٹکس شروع کر دی۔ بلوچستان کی سرزمین پہ جو سردار تھے ان میں آپس میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی، ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، اور ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا وہاں پہ چلایا، لیکن ان کی دال گلی نہیں۔ اسی طرح پھر زمانہ آگے گیا، فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، وہ ختم ہوئی، جو برطانیہ ہے وہ کمزور ہوا، ان کی جو ریاست ہے وہ سکڑنے لگی، تو جو بہت ساری دنیا میں ممالک ہیں، تو انہوں نے ان کو وہاں سے کھا پی کے، لوٹ کھسوٹ کے، انہوں نے وہاں سے برطانیہ واپس آنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح ہندوستان سے بھی انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا، اور ہندوستان سے جاتے جاتے وہ ڈیوائڈ کر گئے، یعنی انڈیا، ہندوستان سے انڈیا اور پاکستان بنا گئے۔ بعد میں پاکستان سے 1971 میں بنگلہ دیش بن گیا، وہ ایک الگ اسٹوری ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو ہسٹری جو ہے بلوچستان کے مسائل کی اور وہاں پہ جو بد امنی ہے، تو وہ کافی پرانی ہے۔ جب 1947 میں پاکستان بن گیا، تو اس وقت کے جو لوگ ہیں، نواب اکبر بگٹی صاحب اور نواب خیر بخش مری اول صاحب، تو ان لوگوں نے جو قیام پاکستان کی جو کیمپیننگ ہے، مہم میں، اس میں حصہ لیا تھا۔ یہ لوگ قیام پاکستان کے حامی تھے، اور ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ جو بلوچستان کا جو صوبہ ہے اس کو پاکستان کے ساتھ یہ لوگ رکھنا چاہتے تھے، لیکن جب سے پاکستان بنا تو بلوچستان کے جو مسائل ہیں چلے آ رہے ہیں۔ تو پھر ہوا یہ کہ یہ مسائل چلتے رہے، اب اس میں ڈویژن ہے۔ ایک جو ہے وہ ہے ریاست نواز سردار، یعنی جو ریاست نواز ہے، یعنی وہ ریاست پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ایک ہیں ریاست مخالف سردار، جو کہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، یا وہ ناراض ہیں اور انہوں نے بغاوت کی ہوئی ہے، اور ان میں سے اکثر کی جو بغاوت کی وجہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے بنیادی جمہوری رائٹس نہیں مل رہے، جو کہ صحیح بات ہے۔ اور ان میں سے چند ہی لوگ ہیں کہ جو غداری کر رہے ہیں، یا جو ایجنٹ بن گئے ہیں انڈیا کے اور دوسرے ملک کے، لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جو زیادہ تر جو اکثریت ہے بلوچوں کی،
وہ محب वतन हैं और उन्होंने उस वक्त कायदे आजम और दूसरे सियासी रहनुमाओं का साथ दिया था। तो जो रियासत नवाज सरदार हैं, तो वो भी इस बात का फायदा उठाते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती है, करना चाहिए और करती भी है। तो फिर वो जो भी करप्शन करते हैं या क्राइम करते हैं, तो फिर उनका साथ दिया जाता है और उनके बहुत सारे मामला पे फिर चशमपोशी की जाती है, उसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि वो बने हुए हैं रियासत नवाज सरदार। और जो रियासत मुखालिफ सरदार हैं, उनके खिलाफ क्रैक डाउन हो रहा है 1947 से ही, उसके बाद से। और वहां पे लोगों को मतलब उठा भी लिया जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो गायब भी हैं। और यही वजह है कि जब हालिया दिनों में बलूचिस्तान से लॉन्ग मार्च किया गया और जो मुजाहिरीन है वो कई 100 किलोमीटर का फासला तय करके इस्लामाबाद पहुंचे, तो होना तो कुछ और चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि उनके साथ इज्जत से बात नहीं की गई और पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, लाठीचार्ज किया औरतों और बच्चों पे। तो यह है कि नाराजगी में और ज्यादा इजाफा हो गया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जो आजकल जो निगरान वजीर आजम है अनवारुल हक काकड़ साहब, तो वो हैं तो पश्तून, लेकिन उनका जो ताल्लुक है वो है बलूचिस्तान से। तो वो उनको चाहिए था वो बलूचिस्तान से आए हुए जो मुजाहिरीन हैं उनसे मिलते, उनको वजीर आजम हाउस में बुलाते, उनको चाय पिलाते, उनको रिस्पेक्ट देते और उनके जो मसाइल हैं उनको हल करते। लेकिन उल्टा हो गया कि पुलिस ने जो है वो क्रैक डाउन कर दिया और इससे जो नाराजगी है वो और ज्यादा फैल गई। तो ये जो बलोच लोग हैं ये बहुत ही अलग होते हैं, जो माइंडसेट होता है ये बहुत ही अलग होता है, जो उनकी नफ्सियात होती है कि अगर बलोचों को इज्जत दी जाए तो वो जवाब में उससे ज्यादा इज्जत देते हैं और वो फिदा हो जाते हैं, वो बिछ जाते हैं। लेकिन अगर बलोच को जलील करने की कोशिश की जाती है ना, तो फिर वो झुकता नहीं, भले से वो उसकी जान भी चली जाए। तो अगर इनको रिस्पेक्ट दी जाती, इनमें खवातीन हैं, इनमें बच्चे हैं, और इस मामले को सॉल्व किया जाता कि जो लोग वाकई क्रिमिनल्स हैं तो उनके सबूत जो हैं वो कोर्ट में दिए जाते और उनको इबरतनाक सजा दी जाती। लेकिन जो लोग मासूम हैं और अगर किसी शक में उनको उठा लिया गया है या फिर किसी जमहूरी हक मांगने की पादाश में उनको उठा लिया गया है, तो ऐसे लोगों को पे कोई जुर्म साबित नहीं होता। ऐसे लोगों को इज्जत के साथ रिहा होना चाहिए, बल्कि पकड़ा ही नहीं जाना चाहिए था, बल्कि इनके जो जमहूरी राइट्स हैं वो तो बिन मांगे ही जो हैं वो पूरे होने चाहिए। क्योंकि जो पाकिस्तान का जो सी पैक चल रहा है, जो 2013 में शुरू हुआ था, उसको 10 साल हो गए हैं। तो सी पैक जो है उसका ताल्लुक गवादर से है और बलूचिस्तान की जो जमीन है वो सी पैक के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है। तो अगर सी पैक को कामयाब करना है तो बलूचिस्तान में अगर तरक्की खुशहाली आएगी तो ही सी पैक जो है वो कामयाब हो सकेगा, वरना सी पैक भी जो है वो खराब हो सकता है। क्योंकि जो बलूचिस्तान है वहां पे लोगों के पास कुछ भी राइट्स नहीं है। रोटी कपड़ा मकान के सेहत की सहूलतें नहीं है, कारोबार के मौके नहीं है। जो बलूचिस्तान की जो सरजमीन है वो कुदरती वसाइल से माला माल है, जिसमें मादनियात हैं, सोना है, तांबा है, कोयला है, गैस है। लेकिन जो पाकिस्तानी है वो ओवरऑल इतने निकम्मे और नाअहल हैं कि उनमें ये सलाहियत ही नहीं है कि वो इन मादनियात को जमीन से निकाल सकें और फिर वो पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली और भलाई में इस्तेमाल कर सकें। तो सदियों से ये जो तेल है और ये तांबा, सोना, हीरे जवाहरात, मुख्तलिफ गैसेस, तो ये जमीन के अंदर ही पड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद निकाल नहीं सकते, इस काबिल नहीं है। और जो बाहर की जो कंपनीज हायर की जाती हैं इस सिलसिले में, तो जो 50% या उससे ज्यादा तो वो लोग ले जाते हैं और बलूचों को उसमें से जो हिस्सा है वो 1-2% मिलता है या बहुत कम मिलता है। तो बलूचिस्तान में गुर्बत है, लाचारी है, माजूरी है। जो सरदार हैं उनको फंड्स दिए जाते हैं, तो जो फंड्स मिलते हैं या जो बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को जो पैसा दिया जाता है तरक्की के लिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने के बजाय तालीम, सेहत और रोजगार पे लगाने के बजाय जो वहाँ के वज़रा हैं, जो सरदार हैं, वो खुद हड़प कर जाते हैं और जो वहाँ के आवाम है वो गरीब हैं, मिस्कीन हैं। तो फिर क्या होता है कि उनको वरगलाना, बहकाना ज्यादा आसान होता है कि देखें आपको तो आपके राइट्स नहीं दी जा रहे, तो आप बगावत कर दें और आप जो हैं वो जिद्दोजहद करें। तो पाकिस्तान के जो मसले हैं उनका देखिए हल ये है कि अगर पाकिस्तानियों को तालीम मिलेगी, तालीम से शऊर मिलेगा, अगर उनको स्किल्स सिखाई जाएंगी, यहाँ पे अमन अमान होगा, कारोबार के मौके होंगे,
लोगों की जेबें भरी होंगी तो लोगों को हरी हरी सूझेगी, और जो लोग हैं जो क्रिमिनल माइंडेड है भी तो वो दहशत गर्दी और टेररिज्म की तरफ जाना पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब पेट भरे हुए होंगे, खुशहाली होगी, तरक्की हो रही होगी, तो फिर बहुत कम लोग रह जाएंगे कि जो कि क्रिमिनल माइंडेड होंगे, और फिर रियासत का उन पे काबू पाना जो है वो काफी आसान होगा। लेकिन जब लोग मुश्किल में होंगे, खुश नहीं होंगे, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होती हैं वो उनको नहीं मिल रहे होंगे, तो फिर वो नाराज होंगे। तो जो बलूचिस्तान के लोगों के साथ शुरू से ही जो है वो हक तलफी की गई है, उनका हक मारा गया है, और जो वहां पे बलूचिस्तान को जिस तरह डेवलप किया जाना चाहिए था तो वो नहीं किया गया। अगर पाकिस्तान के चारों सूबों में से अगर हम देखें तो पंजाब की जो हालत है तरक्की, खुशहाली, डेवलपमेंट के हवाले से तो वो सबसे बेहतर है, और बलूचिस्तान का जो हाल है वो बहुत ही बुरा है। तो उसमें जो है अभी तक की तमाम हुकूमतें भी शामिल हैं मरकजी, और बलूचिस्तान के अपनी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके लोग भी शामिल हैं, क्योंकि उनको जो पैसा दिया जाता है वो भी बलूचिस्तान पे खर्च नहीं करते, बल्कि वो जाती समझ के उसको अपनी करप्शन में इस्तेमाल कर लेते हैं, खा जाते हैं, या फिर ऐसी चीजों में इस्तेमाल करते हैं कि जो कि आवाम के फायदे के लिए नहीं होती। तो बलूचिस्तान के जो मसला है उसका ये मसला था, ये वजूहात थी कि उनको जो है उनके साथ साजिशें हो रही हैं हमेशा से, उनको उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे, जो बल्कि वो पाकिस्तान में किसी को भी नहीं मिल रहे। लेकिन बलूचिस्तान में बहुत ही बुरी हालत है, आबे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, और बलूचिस्तान के मसले का हल यही है कि वहां के लोगों को इज्जत दी जाए, वहां पे जो है वो तालीम दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाए, वहां पे सेहत की सहूलतें दी जाए, जो जो इंसान आजकल की टेक्नोलॉजी की दुनिया के इंसान की जरूरत है, अगर वो वहां पे दिया जाएगा, लोग खुश होंगे, तो इस किस्म की जो एक्टिविटीज हैं वो होंगी नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो जो लोग पाकिस्तान में, चाहे वो बलूच हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, जो जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में, गद्दारी में इन्वॉल्व हैं, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और सजा मिलनी चाहिए कोर्ट में सबूत रख के। और जो अदालतें हैं उनका निजाम ऐसा होना चाहिए कि वहां अदालत में जो भी जाए उसको इंसाफ मिले, बर वक्त इंसाफ मिले, और मौसर इंसाफ मिले। जब केसेस चलते रहेंगे, आम से केसेस 20-20 साल फालतू की जो प्रोसीडिंग्स होती है, खानापूरी चल रही होती है, तो लोग जो हैं उनका अदालत पर एतबार नहीं है। तो फिर क्या होता है कि फिर लोग खुद अपने फैसले कर रहे होते हैं, और फिर वो क्राइम्स करते हुए डरते भी नहीं। तो जो कोर्ट सिस्टम है, जुडिशरी है, जो अदालती निजाम है, उसको साफ शफाफ होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और जो इंसाफ है वो फौरी होना चाहिए, और वो मौसर और वक्त पे होना चाहिए। तो फिर ये होगा कि जो क्रिमिनल्स हैं उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं तो वो डर के मारे खुद क्राइम करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि यहाँ की अदालतें इंसाफ फराहम करेंगी। यहाँ का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ फराहम नहीं करती। तो लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अदालतों में जाए बगैर जो है शक की बिना पे किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। तो वीलॉग के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं।